المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. صلوات محمد. قرآن کریم کی مشہور و معروف آیت، اس کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا ہے. اس میں خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ دیکھو ہرگز انہیں مردہ تصور نہ کرنا جو راہ خدا میں شہید کر دیے، جو راہ خدا میں مار ڈالے گئے. بڑے صاف لفظوں میں قرآن نے اعلان کیا ہے کہ ہرگز انہیں مردہ تصور نہ کرنا جو خدا کی راہ میں مار دیے جاتے ہیں. تمہارے ذہن میں تصور آنا بھی نہیں چاہیے کہ جو راہ خدا میں مر گئے ہیں وہ اب مر گئے ہیں. نہیں، خداوند عالم کہتا ہے کہ مرے نہیں، شہید ہیں، زندہ ہیں، اور صرف زندہ ہی نہیں ہے بلکہ اپنے پروردگار کی جانب سے رزق بھی پا رہے ہیں. صلوات میں یہ آیت ایک طرف جہاں شہید کی زندگی کا اعلان کر رہی ہے کہ مرنے والا مرا نہیں، شہید ہے، زندہ ہے، وہیں دوسری طرف قاتل کے منہ پر ایک بھرپور تماچا بھی ہے کہ دیکھو جسے مار دینا چاہتے ہو اسے خدا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ رکھتا ہے. جس کا تو رزق لے لینا چاہتے ہو خدا اس کی قیامت تک اس کی رزق جاری رکھتا ہے. لہذا بڑے صاف لفظوں میں قرآن کہہ رہا ہے کہ انہیں ہرگز مردہ نہ سمجھنا جو میری راہ میں مار دیے جاتے ہیں. ارباب اعزاز، قرآن کی یہ آیت کربلا کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ دیکھو دشمن چاہے کتنا بھی قوی کیوں نہ ہو، کتنا بھی اس کے پاس اسلحے کیوں نہ ہو، وہ اپنے مقصد میں کبھی کامیاب نہیں ہوتا ہے. اور یزید نے یہی تو چاہا تھا حسین سے جنگ کر کے کہ دین کو ختم کر دیں. یزید نے اپنی تمام تر قوتوں کو اکٹھا کر کے ایک بار یہ کوشش کی تھی کہ نبی کے لائے ہوئے دین کو ختم کر دیں، لیکن دین کو بچانے والا اللہ نہ جانے کتنا قوی ہے کہ حکومتوں کے پرکھچے اڑ گئے لیکن دین مٹا نہیں. صلوات بھیجے محمد. تو راہ خدا میں جو مر جائے وہ زندہ ہے، اور کربلا کے شہید بھی زندہ ہیں. اور حسینیت آج صرف زندہ نہیں ہے حسین، بلکہ حسینیت آج بھی ایک بہت بڑا معجزہ ہے. حسینیت آج ایک بہت بڑا معجزہ ہے جس کو آفتاب کے پلٹ جانے کا یقین نہ آتا ہو کہ آفتاب پلٹا تھا یا نہیں، جس کے چاند کے 2 ٹکڑے ہو جانے کا یقین نہ ہو کہ 2 ٹکڑے ہوا تھا یا نہیں، جس کے سنگریزوں کے ہتھیلی پر بات کرنے کا یقین نہ ہو، جس کے درختوں کے جل کے آنے کا یقین نہ ہو، وہ آئے اور آج حسینی معجزہ دیکھے. اس لیے کہ یہ وہ معجزے ہیں جو بیت چکے، آج نہیں ہوتے، آج ہمیں دکھائی نہیں دیتے. لیکن حسین کا معجزہ وہ ہے جو ہر روز ہمیں دکھائی دیتا ہے. صلوات محمد خدا کی قسم 1,24,000 انبیاء کی عصمتوں کو اگر اکٹھا کیا جائے تو ایک حسین بنتا ہے. 1,24,000 انبیاء کی عصمتوں کو اکٹھا کیا جائے تو ایک حسین بنتا ہے. اور 1,24,000 انبیاء کے معجزات کو اگر اکٹھا کیا جائے تو ایک حسینی معجزہ بنتا ہے. صلوات بھی. آپ دیکھیے کہ ہم کربلا کا جو بیان کرتے ہیں، تذکرہ کرتے ہیں، کوئی یاد تھوڑی کرے. 1400 برس بیت گئے، ہم تذکرہ کرتے آ رہے ہیں.
लेकिन आज भी आलम यह है कि हमें लगता है कि आज ही का वाक़या है। 1400 बरस का वाक़या जो 1400 बरस पहले हो चुका है, हिंदुस्तान में भी नहीं अरबिस्तान में ये वाक़या हुआ था 1400 बरस के बाद, और 1400 बरस बाद में आज हमें ऐसा लग रहा है कि वाक़या बिल्कुल ताज़ा है क्या? जंग ही तो हुई थी, करबला में जंग हुई थी। कौन सी बात थी? अगर देखा जाए तो जंग रोज़ होती है, मोहल्ले में होती है, पड़ोसियों के साथ होती है, एक मुल्क से दूसरे मुल्क के बीच में होती है, एक गांव से दूसरे गांव के बीच में जंगें बहुत सारी होती हैं, छोटी बड़ी जंगें होती हैं। लेकिन क्या कोई ऐसी जंग है जो 1400 बरस बाद भी जिसकी याद मनाई जाए? कोई ऐसी जंग नहीं है। आप वर्ल्ड वार देख लीजिए भाई, वर्ल्ड वार फर्स्ट एंड सेकेंड हो चुका है, इतनी बड़ी जंग, लेकिन आज सब भुला दिए उसको, कोई नहीं याद करता। वो लोग आज भी जिंदा हैं जिनके अजीज उस जंग में मार दिए गए थे, इसमें भूल गए। लेकिन ये हुसैनी मूसा है जो 1400 बरस के बाद वो जंग जो करबला में चंद घंटे लड़ी गई थी, 1400 बरस बाद उसकी हम याद मना रहे हैं। तो जंग क्या थी, क्यों थी? यही तो थी, यजीद ने हुसैन से जंग किया, बैत मांग रहा था। इसका वजह यही थी, जंग की वजह थी कि हुसैन बैत कर लो। हुसैन ने कहा बैत नहीं करूँगा। हुसैन ने कहा तुम मुझसे मदीना में बैत मांग रहा है, मक्के में बैत मांग रहा है, तुझे मक्के में हज की हालत में तुम्हें मारना चाहता है और यहाँ कत्ल करके तू अब छुपना चाहता है, जैसे तूने मेरे बाबा को कत्ल कर दिया और दुश्मन का पता तक नहीं चला, मोहम्मद को शहीद कर दिया गया, कातिल का पता ही नहीं चला, हसन को जहर दे दिया गया, दुश्मन का नामो निशान नहीं। मैं फातिमा का लाल हुसैन, चलो करबला में चलो, मैं तुझसे जंग करके दिखाऊंगा। हुसैन करबला में आए और यजीद क्यों हुसैन से बैत के लिए तलबगार, क्यों जंग करना चाहता? सबसे बड़ी बात यह है कि उस वक्त का यजीद आज का यजीद नहीं था। आज का यजीद जो छोटा बच्चा भी नाम सुनता तो लानत भेजता है, उस वक्त का यजीद इतना सस्ता, इतना नीचे गिरा हुआ यजीद नहीं था। दुनिया की 2/3 हिस्से पर उसकी हुकूमत थी, बहुत बड़ा था भाई, दुनिया का सुपर पावर था। आज अमेरिका सुपर पावर है, क्या अमेरिका के खिलाफ आज कोई छोटा सा बांग्लादेश फॉर एग्जाम्पल अगर लिया जाए बोल सकता है? नहीं बोल सकता। इसलिए कि जो सुपर पावर है छोटी बड़ी हुकूमतों को ताश के पत्ते की तरह से फेंकते रहते हैं, कौन नहीं बोल सकता? तो आप सोचिए कि आज के सुपर पावर से अगर एक मुल्क नहीं टकरा सकता है, उस वक्त का यदि जो 2/3 दुनिया का मालिक था, हुकूमत कर रहा था, वो हुसैन से कोई हुकूमत नहीं थी, हुसैन कोई किंगडम नहीं था, हुसैन एक फर्द थी, हुसैन एक फर्द था, ओनली वन हुसैन एक फर्द था। हुसैन से इतना बड़ा यजीद अपनी हुकूमत लिए हुए जंग करना चाहता था। हुसैन की मंजिलत देखिए, यजीद हुसैन की मंजिलत समझता था कि हुसैन क्या है, वरना एक सुपर पावर का एक फर्द से लड़ाई करने की ठानेगा। बैत करना चाहता है, किस चीज की बैत? आखिर क्या था हुसैन के पास? यजीद अपनी इतनी बड़ी जायदाद, सारी दौलत उस पर सदक़े करने के लिए तैयार था, खर्च करने के लिए तैयार। यजीद की बैत तो हो चुकी थी, सारी दुनिया ने यजीद की बैत कर लिया था, अगर एक हुसैन बैत नहीं करती तो क्या जानता। लेकिन यजीद का हुसैन से बैत मांगने का तकरार ये बताता है कि हुसैन के पास कोई ऐसी चीज है जो किसी के पास नहीं है जिसने अभी तक बैत की है। आइए पता करें हुसैन के पास वो क्या चीज है, पूछिए हुसैन से, मेरे मौला आप ही बताइए कि आपके पास आखिर वो क्या चीज है कि जिसके लिए यजीद अपनी हुकूमत को दांव पर लगाए हुए हैं। शायद हुसैन आवाज दें, मेरी दौलत तुम देखना चाहता है, मेरे पास आदम का इल्म है, नूह का अज़्म है, इब्राहिम की खुल्लत है, मूसा की हैबत है, ईसा का ज़ुहद है, क्या क्या देखेगा मेरे पास? सलवात भेजिए मोहम्मद। यही तो चीजें थी जिसको यजीद लेना चाहता था। अच्छा, अगर ये चीजें कहीं और दस्तयाब होती तो यजीद कभी तकरार न करता हुसैन से लेने के लिए। आप छोटा सा मिसाल लेके मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ।
अगर मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत है, कोई सामान मुझे ख़रीदना है, मार्केट में जाएंगे, दुकान पर खरीदेंगे, ले लेंगे, पैसा दिया ले लिया। अगर उस दुकान पर नहीं, दूसरे दुकान पर, कई दुकानों पर हमने खोजा, कहीं ना कहीं से ले लेंगे, कोई बात नहीं। लेकिन अगर कोई सामान कहीं नहीं है, एक ही दुकान पर मौजूद है, हम वहाँ जाएंगे तो मर्जी दुकानदार की दे या ना दे। ये तो है नहीं कि हम कहीं से ले सकते हैं, है ही नहीं किसी के पास, है तो सिर्फ एक दुकानदार के पास। तो बात यही थी, जो चीज़ हुसैन के पास थी किसी के पास नहीं। यदीद उसी को लेना चाहता था। और हुसैन कौन? हुसैन भी कोई मामूली चीज़ था। हुसैन 1,24,000 अंबिया का वारिस था। 1,24,000 अंबिया की इकट्ठा की हुई दौलत का वारिस था हुसैन। इमामत कोई मामूली चीज़ नहीं होती। इमामत दीन के मुहाफिज होती है। इमाम जो है दीन का मुहाफिज हुआ करता है, मुहाफिज है इमाम दीन का। और इमामत वो चीज़ है कि न झुकती है और न टूटती है। इमामत वो चीज़ है। और खुदा की कसम फातिमा के दोनों लाल ने करके दिखाया। बड़े भाई हसन ने हुकूमत को ठुकरा के बताया कि हुकूमत के सामने कभी इमामत झुकती नहीं है। और छोटे भाई हुसैन ने हुकूमत के परकशे उड़ा के बताया कि इमामत कभी झुकती नहीं। ये हुसैन का फलसफा था। यजीद लेना चाहता था, हुसैन कहते थे नहीं। अच्छा, जब जंग होती है, दो मुल्कों में आपस में जंग होती है, तो आपने अक्सर ये देखा है कि दो मुल्क जो आपस में लड़ते हैं तो उसमें हमेशा एक ही कामयाब होता है, दूसरा पस्त होता है। एक जीतता है, एक हारता है। जो जीतता है वो सीना फुला करके अपना घूमता है, भाई जीता है, मुश्किल घूम रहा है, शाम शौकत है। जो मुल्क हार जाता है वो सर झुकाए हुए शर्मिंदगी में कुछ देर बैठा रहता है, छुप छुप के रहता है। लेकिन एक दिन फिर वो अपनी ताकत को इकट्ठा करता है, और जब ताकत इकट्ठा हो जाती है फिर उसी मुल्क से उठ करके लड़ाई करता है और कभी उसे जीत भी जाता है। अक्सर होता है ऐसा। लेकिन वार फातह करबला हुसैन, तूने जिस यजीद को पछाड़ा आज तक वो उठकर खड़ा नहीं हो सका। सलवात बिन मोहम्मद वाले आज तक यजीद खड़ा नहीं हो सका अपने पैर पर। हुसैन ने ऐसा पछाड़ा करबला किया। यजीद अपने साथ क्या लाया था? यजीद अपने साथ नमाजी लेकर आया था। नमाजी थे, हाजी लेकर के आया था, दौलत लेके आया था, असलहे लेके आया था, कुव्वत लेके आया था, ताकत लेके आया था। सबका इस्तेमाल हुसैन के खिलाफ करना चाहता था। हुसैन ने भी कहा कि तब सही जब मैं तुझे लानत के काबिल न बना दूं। सलवात भी यजीद बैयत का मांग रहा था, हुसैन से बैयत मांग रहा था। और अरबाब अदा, ये तो वो दर है कि आज तक इस दर से कोई खाली गया ही नहीं। अहले बैत का दर वो दर है जहाँ से कोई आज तक खाली गया ही नहीं। इल्म का साइल आया तो इल्म लेके गया, औलाद का साइल आया औलाद लेके गया, फितर साया पर ले करके गया। आज तक कोई यहाँ से खाली नहीं आया। काबा आया, तहारत लिया, सब कुछ यहाँ मिलता है, कोई आज तक खाली नहीं गया। लेकिन यजीद का हाथ खाली रहा, बैयत नहीं ले सका हुसैन को। अरबाब अदा, बहुत ज़्यादा वक्त नहीं कि फज़ाइल पढ़ा जाए। मुहर्रम की 2 तारीख ख़त्म, 3री तारीख शुरू हो चुकी है। अय्याम अदा के बहुत कम रोज़ हमारे पास रह गए। अरबाब अदा, हम जानते हैं कि मुहर्रम का महीना है। मुहर्रम के 10 दिन ऐसे हैं कि हम सब अपनी अपनी जगहों को छोड़ करके यहाँ पर मौजूद हैं, सिर्फ इसलिए कि हम फातिमा के लाल का कम है। और एक बात मैं आपसे साफ बता दूँ कि जो फ़ज़ाइल पढ़े जाते हैं और बहुत बड़ी बड़ी बातें पढ़ी जाती हैं, सब ठीक है, इंफॉर्मेशन के लिए होती हैं, जानकारी के लिए होती हैं। लेकिन माले मजलिस जो है सिर्फ 2 कतरे आंसू, सिर्फ 2 कतरे आंसू जो माले मजलिस है। इसी के लिए हुसैन की माँ
अपने हाथों से पस्तियाँ दबाए हुए स्पष्ट आगे बैठ जाए। ना जाने कहाँ बैठी हो, इंतजार करती हैं, आंखों से आंसू के अपने रुमाल में जस्ट कर दें। तो सबसे ज़रूरी है कि हम जब फर्श पर बैठे तो हुसैन को गिरिया करें। चौथे इमाम ने एक शख्स से पूछा कि तुमने गिरिया नहीं किया, मेरे बाबा की मस्जिद में तुमने गिरिया नहीं किया? उसने कहा आका मैं तो बहुत रोया, गिरिया कर रहा था। कहा नहीं तूने गिरिया नहीं किया। आका मैंने तो आंसू निकाला, आंसू। कहा नहीं तूने गिरिया नहीं किया। कहा आका कैसे गिरिया करें? कहा कि जैसे किसी का भाई मर जाए, जवान बेटा मर जाए, गिरिया वैसे करो। ऐसी गिरिया मेरी दादी माँ को बहुत पसंद है। हाँ बाबियादा मुहर्रम की 30 तारीख शुरू हो गई है। काफिला जो मदीने से चला था, मैं फिर आपको बताता हूँ, जिनमें भी मैंने इसका तज़किरा किया था कि खुदा की कसम वतन का छोड़ना बहुत मुश्किल काम है, बहुत ही मुश्किल काम है। वतन से इतनी मोहब्बत होती है। और बाबियादा आप खुद जानते हैं कि अगर जो लोग ज़ईफ़ हो चुके हैं और जिनके जाने का वक्त करीब है, वो सोचते हैं कि भाई मरना तो खैर सभी को है, उनके दिल में ख्वाहिश होती है कि अगर मरूँ मैं तो वतन में मरूँ। अगर कहीं दूर रहते हैं तो वे चाहते हैं कि मेरी मिट्टी को ले जाया जाए मेरे वतन में। मरने के बाद भी देखिए वतन की मोहब्बत है, वतन से हर एक को बड़ी मोहब्बत होती है। हुसैन को नाना के मदीने से क्यों नहीं मोहब्बत होती? और बाब अज़ा हुसैन ने मदीना छोड़ने का प्लान बना लिया है। मर बाब अज़ा जब हुसैन मदीना छोड़ रहे थे, काफिला तैयार हो चुका था, बीबियाँ सवारियों हमारियों में चढ़ चुकी थी, काफिला चलने के लिए तैयार था। फातिमा की हवेली से एक एक करके हमारी बढ़ती जा रही है और एक बीमार घर की 7 बरस की जो बच्ची बीमार है वो हवेली के दरवाजे पर बैठी हुई अरे बड़े हसरतो याद से एक हमारी को जाते हुए देखती है। ये फूफी अम्मा की सवारी है, ये माँ की सवारी लैला की सवारी जा रही है। हाँ ये साथ में अली अस्तर भी जा रहे हैं, ये सकीना की हमारी है। अरबाब अज़ाई के कमारी को जाते हुए देखती है, आंखों से आंसू बहाती जाती है। एक बार सबसे आखिर में जब अली अकबर चले, एक बार सोहरा ने पूछा ये किसकी सवारी है? एक बार किसी ने कहा ये तुम्हारे भाई अली अकबर की है। बस सोहरा से बर्दाश्त न हुआ, अरे असा उठाई और असा का सहारा लिए हुए अरे अली अकबर की सवारी के पीछे पीछे चलने लगी। कुछ देर जाने के बाद जब अब्बास ने देखा कि सोहरा पैदल चली आ रही है, आका से कहा आका अरे सोहरा पैदल चली आ रही है। हुसैन ने रोका, आए सोहरा के पास आए, कहा बेटी सोहरा तुमने तो रुखसत कर दिया था, अब तुम पैदल क्यों आ रही हो? अजीब फिक्र। कहा बाबा बस एक बार मेरे भैया अली अकबर से फिर मिला दो। और बाप ऐसा हुक्म हुआ, अली अकबर आए, हवेली के सामने सोहरा बैठ गई, अली अकबर आए बगल में बैठ गए। बहन भाई के बीच में न जाने क्या गुफ्तगू हो रही थी। अरे गुफ्तगू करते करते बहन भाई दोनों गश खा गए। बहन का कंधा बहन का रुखसार भाई के कंधे पर, भाई का रुखसार बहन के कंधे पर। जब काफी देर हो गई एक बार हुसैन ने अब्बास से कहा भैया अब्बास देखो काफिले के जाने में ताखीर हो रही है, अरे अली अकबर को कहो कि जल्द आ जाए। और बाब अब्बास अलमदार बढ़े। अरे अजीब मंजर देखा भाई के कंधे पर बहन का गला और बहन के कंधे पर भाई का रुखसार, दोनों गश में पड़े हुए हैं। अरे अब्बास वहां से वापस आए, आका अरे मैं अकबर को नहीं जुदा कर सकता सुगरा से। और बाब हुसैन खुद चल के आए। अरे सुगरा को कहा है बेटी सुगरा
तुम अली अकबर को इजाजत दे दो। ऐ सुगरा, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि अगर कहीं सुकून की जगह मिल गई तो मैं अकबर को भेजकर तुम्हें जरूर बुलाऊंगा। अरबाब अज़ा, अरे अली अकबर भी रवाना हो गए। काफिला चलता रहा। फातिमा सुगरा हसरतों याद से देखती रही, आंखों से ओझल हो गया काफिला। इधर सुगरा, अरे अली अकबर के जो कदम उभरे थे रेत के ऊपर, उस पर अपना दाहिना रुखसार रख कर पड़ी थी। अब याद थी तो सिर्फ अली अकबर की, और सिर्फ उम्मीद थी कि जब अली अकबर आएंगे तो शादी होगी। अरबाब अज़ा अली अकबर चले गए। सुगरा हजरतों याद से देखती रही। काफिला पहुंचा करबला में। वो वक्त भी आया, अरे 10वीं मुहर्रम का दिन, जब असर आशूरा हुआ और जब सब एक के बाद दूसरे शहीद होने लगे, यहाँ तक कि कासिम के लाश के टुकड़े आ चुके और मोहम्मद कत्ल किए जा चुके। अरे जितने हबीब इब्न मुजाहिद थे सब निसार हो चुके। तो क्या होता है, एक बार जवान अली अकबर ने इजाजत ली। अली अकबर रन में गए। मुझे पूरी शहादत नहीं पढ़नी है अली अकबर की, मुख्तसर ये है कि अली अकबर के कलेजे पर बरसी लगी। अली अकबर जमीन पर नीचे आए, आवाज दी, या बताओ अलैकुन्ना मिन्नी सलाम। ऐ बाबा, मेरा आखिरी सलाम ले लो। अरे इस आवाज का सुनना था। हुसैन दौड़े हुए अली अकबर की लाश पर आए। अजीब मंजर देखा, जवान लाश एरिया रगड़ रहा है, अरे सीने से खून निकल रहा है। एक बार पूछा, बेटा क्या हाल है? कहा, बाबा सीने में दर्द है, नेज़े की अनी टूट गई है। बस एक बार हुसैन बैठे, चाहा कि यानी का फल निकाले। एक बार पूछते हैं, बेटा अरे कोई आखिरी वसीयत है? एक बार अली अकबर कहते हैं, ए बाबा अब तो मेरी मौत अन करीब है। बाबा मैंने वादा किया था अपनी बहन सोहरा से कि मैं तुम्हें लेने जरूर आऊंगा। बाबा अब तो मैं जा नहीं सकता। बाबा आप वक्त के इमाम हैं। अरे अपने मोजे से मुझे सोहरा का दीदार करा दे। अरबाब अज़ा, अरे हुसैन ने 2 उंगलियां उठाई। अली अकबर देखो उंगलियों के दरमियान में। अब जो अली अकबर ने देखा, हवेली के अंदर देखा, एक एक हवेली के कोने कोने को देखा, सोहरा नजर नहीं आई। अली अकबर परेशान हो गए, घबरा के पूछते, बाबा अरे मेरी बीमार बहन हवेली में नहीं है। अब हुसैन कहते, बेटा सब्र करो, देखो और कहीं देखो, रौज़ा रसूल भी देखो, शायद गई हो। एक बार रौज़ा रसूल उंगलियों के दरमियान में आया। एक बार अली अकबर ने देखा रौज़ा रसूल खाली है, वहाँ भी बीमार सोहरा नहीं है। अरे अली अकबर की घबराहट बढ़ गई, मेरी बहन सोहरा कहाँ है, दिखाई दे रही थी। ऐ बाबा मेरी बहन को दिखा दो, दीदार करा दो। और वाबेदा हुसैन उंगलियां घुमाते रहे। एक बार अली अकबर ने क्या देखा, अरे अली अकबर की बहन सोहरा हवेली के बाहर जहाँ अली अकबर से विदा लेती, अरे वही खाक पर बैठी हुई अली अकबर के कदमों के निशान पर, अरे अपना दाहिना रुखसार रखे हुए, अरे आहिस्ता आहिस्ता कह रही है, भैया अली अकबर, भैया अली अकबर, लानतुल्लाहि अलल कौमिल ज़ालिमीन वसयअल मुल्लज़ीना यमुनक़लिबुन यनक़लिबून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि